Okay, so I think let's start the session because we don't have much time. Normally, I take session of 2 hours and it's a 1 hour session, so might be we miss something in the middle, but that's fine. The first thing is you guys can let me know about the language which you are comfortable. Maybe Hindi, English, or any other language. But I'm more comfortable in Hindi and English. So you guys can tell me which language you feel like are comfortable and we can start the session on that language because it's very important that you understand. It's not about the I can speak any language, but it's very important that you should a communication should be better. So I want you to tell me which language should be better. Should I speak Hindi or should I speak English? You can comment in that case so that I can understand. Okay, so I think I can speak Gujarati. Let's talk in Gujarati, right? You guys are comfortable? English. Okay, great. I need a response audience, right? A sleeping audience is something like it's Sunday. I totally understand. It's you guys are at home. Okay, Hindi and English both. Okay, so we'll use Hindi and English both and normal communication जैसे हम लोग school college में करते हैं, right? So that it's very feasible for you to understand that. I understand आपका Sunday है. You are giving one time like 1 hour to me. It's very important because it's a Sunday time and sir Sunday को तो हम लोग को free time मिलता है. आप कहाँ से session ले रहे हो? ठीक है? Maybe you have that question in your mind coming to this session, right? ठीक है, आपका Sunday है. थोड़ा motivated Sunday करते हैं. Sunday motivated रहेगा तो आप भी थोड़ा enjoy कर सकते हो. Maybe Monday थोड़ा better हो. Or maybe see, I can see the 30 to 40 might be I can say the students or audience in this session. तो मुझे ज़्यादा expectation नहीं है. I want anyone on the session to be the motivated and whatever like I have learned from like मैंने अपनी life से जो भी सीखा है, me you guys can take a lesson from me and somewhere you try to be overcome or you try to implement that in your life. Okay, so कहीं ना कहीं अगर किसी एक को भी मेरी वजह से impact मिल रहा है, that is the one thing that I feel like grateful to myself, right? So a session is good, okay, and you guys know about me. I think you search in Google or YouTube and anything, or I can start from scratch. Okay, so that's fine. I'm starting from scratch. I totally understand that you guys don't know about me. Okay, as for the introduction of Priyanka, so thank you, Priyanka, for your introduction, and it's a great to invite me for this session. And definitely, the session will be very useful. Meanwhile, I want each and everyone to be very like interactive, right? I don't feel like a sleeping audience. Trust me, अगर आप लोग सो जाएंगे तो मुझे भी लगेगा मैं भी सो जाता हूँ session बंद कर देते फिर, right? So even I want to enjoy my Sunday. I don't work normally on Sunday, but I'm giving 1 hour to you guys so that even my time is very useful, right? So Sunday मैं भी खराब कर रहा हूँ और आप भी खराब कर रहे हो तो थोड़ा खराब नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम Sunday को useful बनाते हैं, ठीक है? So yeah, so you can see like I am one of the youngest entrepreneur, you can say in this field or something. Not I am just 27, maybe something like your brother, big brother and all. ज़्यादा मेरी age नहीं है. So you don't consider me to as a age of. I understand introduction थोड़ा बड़ा था. मैंने when I go to different universities और introduction देते हैं तो the students feel like हाँ कोई होगा 30, 35, 40 साल का, ठीक है? But it's not like that. I'm just 27, okay? And so you can consider me like ज़्यादा गैप नहीं हमारे में 3, 4 या 5 साल का गैप होगा. But it's feel like I understand you guys. ज़्यादा कोई difference नहीं है तो be comfortable with me, whatever the things or whatever the question that you have, और आपको कुछ भी personal life में लग रहा है या professional life में लग रहा है या आपको कहीं ना कहीं किस चीज से headers लग रहा है, any things you can discuss with me after the session. I can give more time to you. So be free, comfortable, relax, and I have such experience. So I will share my experience with you, and that experience might be help you in the your career or further in your life, right? Let's start this session. So it's not about session, I say. It's normally I'm sharing my story. The purpose of sharing a story is something maybe you guys feel like very motivated or something I did. Yeah, something I did different from all the other people. That's why I'm here. I'm a speaker in front of you. So let's begin why I'm here and what I did, everything. So let me tell you
about my journey as an entrepreneur, right? So see, if I talk about my schooling, I was an average student. Okay, average students, मतलब 75, 80% or something. I crossed 85, 80% is what my average score that I used to get in school. So I did my schooling till 12th in my hometown that is called Gujarat, Vapi. And after that, basically 11th and 12th, I have a two option. Okay, whether I should continue on my same school, or as I was ambitious from starting, and I know like as you are ambitious, might be many of you are ambitious. So I choose the different path. Okay, the path was more difficult, I know, but I know some that it will make my future something better, or it will make my life more comfortable. So then I moved to Kota, Rajasthan. So basically Kota, if I talk about Kota, you guys might be know about the Kota due to Kota factories. Okay. And आपके भी बहुत relatives or friends, they went to Kota for IIT preparation and even the NEET preparation, right? So I went Kota for IIT preparation, and it's a basic along with my 11th and 12th, and we have given our 2 years there. So it's good. So our life is same as Kota factory. We also have a same PG institute. Faculty used to come, they used to go, and I understand that my time there was some vibrant has came, Bansal faculty has left, and everything was going. That's the part of a Kota. But see, the why I'm sharing that is it's important because what I learn is hard work. Okay, so we used to study 10 to 12 hours per day, and that's our dedication. Okay, so as I say, I was 17 and 18 years, and coming at this age, managing everything by on, giving time to study, something like 10 to 12 hours per day, that teach me the lesson of the hard work, right? Hard work, you say smart work. And whatever the habit is, okay, I must say that if you want to be, make yourself better, you need to start from today. It's not like आप एक दिन में अपने आप को like you can't be successful or you can't become what you want in one day. Okay, it's a continuous process of evolution yourself. It's a continuous process of improving yourself, right? So if I say that among all this audience, someone want to become as an entrepreneur, someone want to become join an army, some of them might be become a successful job or something in sales and everything. So it's not that within one day you will get everything and you can make yourself punctual. Okay, so why I'm telling you punctual? Okay, the reason is the skills which you have, the potential which you have is not a one day, it's a continuous process. अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना आगे, तो आपको आज से मेहनत करनी पड़ेगी. Okay, you have to be the person which you want, right? If you want that I should be the successful, I can achieve all my dreams, और मेरे ड्रीम्स नॉर्मल नहीं, मेरे सपने बड़े हैं, तो आपको उस बड़े सपने के लिए, बड़े अचीवमेंट्स के लिए अपने आप को बेटर बनाना पड़ेगा. You need to make yourself better in terms of everything, in terms of your lifestyle, in terms of your time management, in terms of your presentation, in terms of your communication. So you should be the person that define your goal, right? So आपको वहां से ही स्टार्ट अपनी जर्नी. समझो आपको आज पता है कि मुझे लाइफ में 5 साल बाद कहाँ रहना है. You become that person. आज से आप स्टार्ट करो उस एम को अचीव करने के लिए. So we went there, we did hard work, and definitely at the end of the 2 years, I was not able to attend IIT exam, and that considered to be the failure for everyone, but I never considered myself as a failure, right? Why? Because it's a 2 years time, and I have given my time, my potential time, okay? And I learned many things. My learning is important. I know that my learnings may not define my like IIT ranks or numbers define नहीं करते मेरी लाइफ को, right? आप अपने आप को कितना हार्डवर्क, कितना आपने सीखा है, कितना लाइफ का एक्सपीरियंस क्या आपको वो आगे लेके जाता है. So somewhere else it was a disappoint, but maybe I thought it's better, right? Then I took my engineering from Maharishi Makkhendra University, that is Ambala, and I did 4th year. So basically a BTech from Electronics and Communication from Maharishi Makkhendra University. It is in Ambala. So first year is same.
First year, you guys know we have a lot of expectation in college. When we go, we chill out, hang out. हम लोग के बहुत सपने होते हैं. We watch movies and all. हमें लगता है कि 11th बस your parents से बेटा 12th तक पढ़ लो, बाद में तो मजे करने. College is all about you enjoy, right? आपको भी लगता है यार 12th तक ही पढ़ना है, उसके बाद तो लाइफ को enjoy करना है. So even the same, even we have the same dream, right? और हम भी कॉलेज में गए, एक साल तो बहुत चिल मारे हमने, घूमे टेरे सब. फिर second year what happened is something like as I say, I was ambitious and my dreams and my things were higher than my expectation or something. I want to achieve the bigger in my life. So in second year what I did, I started taking tuitions. Okay, basically after my college 8 to 4, I used to take tuitions like 3 to 4 hours. Used to teach the students from class 9 to 12. Okay, so it went on 6 months. Okay, and I did pretty good. There was good students. They got a good ranks and the achievements were good. Even as a like when I train them, when I teach them, it feel like happy and something I achieve. Okay, it's a mini achievement, but I must say that I was happy with the results my students are giving, and that was a positive thinking from my end. So what happened is after second year in the engineering, okay, so we have to do the internship. So internship is all about might be I don't know aware about that your college you guys goes to internship, but what happened is in after second year we have to go for the internship, and I applied in Internshala. So if you guys want the internship, you are looking for internship something, you can go to Internshala. Internshala is basically an app where you can find basically a lot of internship, right? So even I go to the Internshala and fill all the details and everything, and luckily I got internship in Mumbai. The company is called Riddler. Okay, they have an application, and I joined there as a junior engineer. So as an second year students getting paid internship in one of the good city Mumbai, with the job role of junior engineer, it's a really great achievement for me and even for my college, right? Because none of my colleagues has ever achieved this. Okay, you can understand second year students getting in paid stipend in one of the best company, that's achievement. So that was the first thing that it was good for me. Then I moved to Mumbai and I started the internship. Basically it was a night. So see, I will share my internship journey in detail. The reason why I'm sharing this detailed journey, this was my first ever experience as a corporate or as a working profession, because I never worked before in a corporate and all. So what I learned is very important, because the internship is basically the point where I understand that I can be the good entrepreneur. Internship ऐसा टाइम था जहां मुझे समझ में आया कि in which field I am good enough, what skills I have. I have analyzed myself. मैंने अपने internship से अपने आप को analysis किया था, right? So let me talk about my internship. It was a night shift. Okay, so you guys know about bus depot, जहाँ पे government की bus होती है. That is called Best in Mumbai. So I used to work in a bus depot from late 8 to 4 in the morning, and it went around a week. एक हफ्ते हमारा project चलता रहा. After that, what happened is हमें काफी problems आने लगे. The problems is like we are building some new technology or something new in that new device. So device में काफी heating आ गई, problems आ गई, काफी कुछ successful नहीं हुआ. It went for a week, but it's not as successful. So what happened is like as my performance were good, after night shift, I have to travel 1 hour and go to Ville Parle. And in office, I used to work with HR, technical head, CEO. So they are the leaders in the company and they have almost 100 plus employees. So I worked with the top management, and within a 4 to 5 days, हमने उस problem को rectify किया. And I was the main person who worked on this field. Okay, so now after working for 3 to 4 days, our project was successful. Then looking at my potential, looking at my skills, they told me to become the basically trainer बन जाओ आप, ठीक है? Then I become the trainer. और there was many students जो कि engineering pass out आए थे, okay? और they used to take the interviews. I used to take the interviews how like if they are potential candidates for this project or not. And end of this project, I have made a report, complete report, and that report has been framed, finalized, and मुंबई में उस टाइम पे 15 से 20 डिपो में हमारे काम चल रहे थे. हर डिपो में रिपोर्ट दिया गया कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स, कुछ भी इश्यू आते हैं, आप इसको रिफर कर लीजिए, ठीक है? सो दिस इज आई थिंक सो इट्स अ नॉर्मल स्टोरी. ओके,
Okay. Yeah. So the reason why I'm sharing this experience is after this internship I came to understand myself. Okay. Joining as a junior engineer at the age of 20 and coming from the second year, college second year, I learned about my skills. Okay. I understand that I have a hardworking skills because I was working at that time. मैं 15 से 16 घंटे काम कर रहा था in the bus depot and then go to the office. So I'm giving 15 to 16 hours in my job. Okay. So that teach me that I'm a good hardworking, right? And the second part is I'm good as a problem solving skills. Okay, so I have there's a lot of problems that comes around me, but I'm lucky enough to solve all the problems. And what about the management? There's a top management in the company. They call me personally and they ask the ideas and concept because isko kaise kare and all. So at that time I understand I have innovative ideas, I have innovative concept, I have an innovative mind, right? So that also I understand from myself. And after this, I understand that I have a good management skill, training skills and all. So looking of all these factors, so I thought I understand myself at that point. मैंने अपनी पहली जॉब से समझा कि मेरे अंदर काफी अच्छी स्किल्स है. ओके, देन आई अंडरस्टैंड दैट लुकिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ये सब चीजें कहाँ पे यूज आती एज अ एंटरप्रेन्योर. जैसे किसी ने लिखा मल्टीटास्किंग, internship में I did multitasking. So this is very important when you become as an entrepreneur. Okay, so when you do the job, you work on particular field, particular department, right? Might be you have an option of doing multitasking, but not too much. But as an entrepreneur, we have a multitasking top. Like multitasking, हमको हर एक चीज मैनेज करना पड़ता है. Starting from finance, starting from marketing, starting from sales, starting from the operations, everything we have to see, right? So from that internship, I came to know that I am a good as an entrepreneur and I should start my career as an entrepreneur. Okay, so वहां से मेरे माइंड में चीजें आ गई थी कि नहीं, अब मुझे मेरी लाइफ, माय करियर को एज अ एंटरप्रेन्योर ही लेके जाना है, बिकॉज आई नो दैट आई एम गुड इनटू इट. ओके, देन व्हाट हैपन इज, आपको कुछ आइडिया आ गया, आपको कुछ करना है, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं. अब मैं माइट भी, आप लोग इस सेशंस में है, ठीक है, बहुत से लोगों को आइडिया है कि मुझे करना क्या, ठीक है, आपके माइंड में बहुत मे बी आपके कुछ स्टार्ट करना चाहते हो आप. सी इट्स नॉट अबाउट, द मेन थिंग इज ना, मैं आपको ये बोलूं कि कोई चीज बड़ा है छोटा नहीं होता. ओके, माइट बी दैट टुडे व्हाट यू थिंक अबाउट, आपने एक छोटा सा टास्क लिया, राइट? सपोज यू आर गेटिंग समथिंग 60% इन दिस सेमेस्टर, बट आपने सेकेंड सेमेस्टर में 80% का टारगेट रखा हुआ है. And when you achieve this 80% target, you feel like मैंने कुछ achieve किया हुआ है, right? So make your aim, आप अपने छोटे छोटे ड्रीम्स बनाओ, उसको पूरे करो. उस ड्रीम्स को, जब आपके ड्रीम्स पूरे होंगे ना, तब आपको कुछ और बड़ा मिलेगा. तो कहीं ना कहीं आपको कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. That initiative is very important. So now I understand that I am good into it, but the main important thing is कौन से आइडियाज पे किस पे काम करें. Then I started, if you talk about, मैंने बहुत सारे छोटे मोटे internship किए, right? So when I did a small internship and everything, there I came to know about digital marketing. Okay, so when I came to know about digital marketing, I learned from the blogs, I learned from the YouTubes, I learned from everywhere, whatever I learned. And I found this field is very relevant to my knowledge, my experience, because this field is very innovative, knowledgeable, and implementation, everything. So I found it good. Okay. So when I found that, yeah, this is a good skills and everything, so I was focused on digital marketing. I learned many things, but now there comes a factor, कैसे इसको start करें, right? So see, in the starting, what I understand, digital marketing is starting something new. मुझे लगा मैं कुछ नया start कर रहा हूँ, right? So even I don't have deep knowledge because मैंने कभी corporate में job नहीं किया था. I don't have 100% confidence. Okay, so मैंने एक there was like मैंने एक जॉब में, एक इंटर्नशिप में एक इंटरव्यू दिया था, एंड बाय लकली उसने क्या किया कि बहुत सारे रिज्यूमे फॉरवर्ड कर दिया, फॉरवर्ड ईमेल्स में. वहां पे मेरे पास कुछ और रिज्यूमे आ गए. देन आई गॉट टू अंडरस्टैंड वन रिज्यूमे, मुझे एक रिज्यूमे बहुत अच्छा लगा, एंड दैट गाय इज फ्रॉम बैंगलोर एंड ही इज रियली लाइक ही इज गुड इनटू डिजिटल मार्केटिंग. तो आई फॉलो दैट गाय. मैंने उसको 10-15-20 दिन में फोन से बात किया एंड बोला देखो सी आई एम गुड एज अ एंटरप्रेन्योर, मेरे पास ये आइडियाज है, हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करते हैं and I want your support and everything. So he said that fine, I am ready to support and all. मुझे इतना knowledge नहीं था, that's why I'm not
that confidence to take the initiative. That's why I've taken the help of my friend. Okay, मैंने उससे बात करके मैंने help लिया. Then I start. So and I have like मुझे ये था कि मैं बाकी चीजें clients and all handle कर लूँगा और जो projects and all होगा basically that guy can वो handle कर लेगा. So now I have a confidence कि हाँ चलो start करते हैं, सब कुछ better and all. So the reason so basically कैसे मैंने start किया मैं आपको बताता हूँ. So I have ideas, I have a concept. Now it's very important to execute, right? So execution के लिए कोई सब लोग बोलते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है, राइट? बट मैं कभी नहीं बोलता हूँ. आई नेवर से आपको बिजनेस स्टार्ट करने के पैसे की जरूरत होती है. आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपका माइंड और बेसिकली कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं हमें पैसे चाहिए, बड़ा स्केल अप करना है एंड देन टू स्टार्ट द बिजनेस. इट्स रॉन्ग. ओके, आपका बिजनेस पहले दिन सक्सेसफुल नहीं होता. I work with lot of big clients, big corporates, big startup. एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर उसका 100 करोड़ का टर्नओवर है तभी भी he can't be the successful within a year. तो आपका जो एक स्टार्टअप करते हो आप या आप कुछ भी काम करते हो, आपको टाइम लगता है चीजों को सीखने के लिए. आपकी गलतियां होंगी, मे बी आपका कॉन्सेप्ट काम ना करे, आपका लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एज अ एंटरप्रेन्योर व्हाट आई फील लाइक, आप जब स्टार्ट करते हो यू स्टार्ट विद अ जीरो. Start with the learning. Okay, so what I did is I went to one of the event where a lot of companies came to present their product and everything. मैंने वहाँ पे सबसे जाके 1-to-1 बात किया कि this is my concept, this is my idea, and this is how we can promote your business through digitally. And trust me, I got a very good response. Okay, so out of I talked to 30 to 40 people, normally 80% people are interested. Okay. And trust me, 20-30% people did told me that please come to my office and I want to discuss about it more. Okay, so when I see the market, when I understand the market, I understand that market is good. I understand people want this service, so that give me the more confidence to start with 100% surety that it can be the successful. Okay, then. So in the meanwhile, what happened? I told me that I have I contact with one of the guy and we want to start with them. So he has planned to move to Bangkok, and so basically he can't able to support me. But then I learned from myself, make a websites and all digital marketing I learned, and I was confident to take the project and all. So I started visiting all the different offices. और मैंने जिससे बात किया था events में, मैं उनके offices में भी गया. And in the meanwhile, if I talk about मैंने 5 दिन में I came across like 100 offices में मैं गया था. 20-30% people ने तो बाहर से हटा दिया, like एंट्री नहीं मिली because वॉचमैन कोई जानते नहीं तो आपको वॉचमैन बोला एंट्री नहीं जा सकती. तो that was like काफी चीजें थी, but the most important thing is I learned people are interested in this. Okay, so that give me the more confidence कि हाँ इसको मैं start कर सकता हूँ. Then I went to my college. And I was in like a third, it was like a sixth semester, right? So sixth semester was there, and I made websites and everything. And luckily, after 1 month, I got one of the client. और फिर वहाँ से मैंने अपने काम को start किया. I started promoting my agency that is called 360-degree Digital Marketing by On. And by like 3 to 4 months, I have a 6 to 7 clients, and we got within 6 months, I have one of few international clients, and it scale up. Okay, so I was giving my 100% there. But like somewhere I miss my study. Okay, और मैंने कॉलेज में बहुत कम ध्यान नहीं दिया अपनी पढ़ाई पे, and I was more focused on my startup. So मेरा ऐसा हाल था कि सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है 6 सेमेस्टर का, and I don't know कि सब्जेक्ट कौन से. ठीक है, I was that interested in मेरा जो mindset था और मेरी जो total dedication था, it was completely on my startup. Okay, but एक रात पढ़ के मैंने अपनी इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया, एंड दैट लाइक मैं इट वाज गुड 7.7 CGPA. सो इट वाज समथिंग नॉट दैट मैंने अपने कॉलेज को मैनेज किया एंड इट वेंट गुड. सो इन ए कॉलेज विद इन 1 year आई डिड ऑलमोस्ट 10 lakhs बिजनेस. कॉलेज में रह के ही आई हायर सम ऑफ द एम्प्लॉयज as a freelancer, and they worked me as a freelancer, so I used to manage them after my college and all. So within college I did something revenue of 10 lakhs, and it was I became one of the successful entrepreneur in my college, and I was the first entrepreneur in my college to become such successful within the college itself. And so after 8th semester, my college has given me proposal
to train my batchmates. Okay, so I was given training parallelly. I started my own training institute. I used to train students. So my first student is from Canada, and like I have like personal one-to-one. I have started the training, and it gave me the more confidence. So in 8th semester, my college basically, if I talk about कि मेरी मैनेजमेंट ने मुझे अप्रोच किया कि आप हमारे आपके जो कलीग्स है, सो बेसिकली जो मेरे कलीग्स थे, जब मैंने स्टार्टअप किया था तो दे बोले थे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एंड कुछ दिन हंसते भी थे कि क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है ऑल. सो 8th सेमेस्टर में मैंने अपने कलीग्स को पढ़ाया. ओके, सो आई हैव सेलेक्टेड 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और मैंने उनको 3 महीने का लाइक आई ट्रेन देम फॉर 3 मंथ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स. उनको 3 महीने मैंने डिजिटल मार्केटिंग के लिए रेडी किया, एंड द गाइस हैव वर्क विद दी हमारे जो कॉलेज के प्रमोशन में उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया फॉर ऑलमोस्ट 2 मंथ. सो उनका जो आखिरी का 6 सेमेस्टर था, इट वाज टोटली डिपेंड अपॉन मी. ओके, सो मैं एट द एंड आई अगेन बिकम द ट्रेनर इन माय कॉलेज. सो मैं कॉलेज गया था पढ़ने के लिए, लेकिन मैं पढ़ा के वहां से निकला. ठीक है, और मैंने अपने बैचमेट्स को पढ़ाया जो मेरे साथ में, जिनके साथ में 3 साल पढ़ा था, मैं उनको आखिर में पढ़ा के निकल रहा हूँ, एंड उनको इंटर्नशिप मिली. और आज बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स मैंने पढ़ाया था, दे वर वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटर. बहुत से लोग, मतलब 20 स्टूडेंट में से मैं आपको बताऊं 6 से 7 लोग आज भी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जॉब कर रहे हैं. सो उन्होंने जो 3 साल में सीखा वो कहीं ना कहीं उनको इतना यूजफुल नहीं आया जितना उन्होंने मेरे से सीखा 3 महीने में. सो लर्निंग इज इम्पोर्टेंट. सो दिस आई डिड इन माई कॉलेज. सो ये मेरी कॉलेज की जर्नी थी. और आज भी इफ यू सी, आई एम लाइक वन ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन माई कॉलेज. और आई हैव टेकन माई मैं सेमिनार्स अपने कॉलेज में देता था एमबीए स्टूडेंट्स को. आई वॉज नेवर एन एमबीए, राइट. मैं इंजीनियर था और मैं एमबीएस को सेमिनार देता था. देन इवन लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज, लाइक मैं अपने कॉलेज में ही आपको बताऊं कि जहाँ पे मैनेजमेंट था, बीसीए था, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स से, आई यूज्ड टू गिव देम कंप्लीट taught them about complete digital marketing. So it's everything went up very good. And after the end of my college, I got a placement start हो जाता है, जैसे आपके कॉलेज में प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे. The main thing is like मैंने कभी प्लेसमेंट बैठा ही नहीं. मुझे ये था कि whatever they are giving me, I'm earning more than that. जितना भी मुझे ऑफर मिला था मैं उससे ज्यादा अर्न कर रहा था, राइट. सो दिस इज व्हाट आई हैव डिफाइंड माय वैल्यूज, दिस इज व्हाट आई डिफाइन माय करियर, राइट. सो एंड आल्सो क्या हुआ कि वन ऑफ माय गुड फ्रेंड, उसने मुझे जॉब प्रपोजल दिया. इट वाज अ गुड बैंगलोर कंपनी, एंड आई वाज पेड, मतलब उस टाइम पे मैं आपको बताऊं, इट वाज समथिंग 7.2 LPA. इट वाज 2017, राइट. और मेरे कॉलेज का सबसे, मुझे सामने से ऑफर हुआ था जॉब, मेरे फ्रेंड ने ऑफर किया था, एंड मेरे कॉलेज का सबसे हाईएस्ट पैकेज था दैट 7.2 एट दैट टाइम ड्यूरिंग माय बैच. सो फैमिली ने बोला लाइक मुझे भी कहीं ना कहीं लगा यार जॉब अच्छी, प्लेसमेंट अच्छा है, नॉलेज था डिजिटल मार्केटिंग का सब. फैमिली ने बोला कि यू टेक द जॉब, एवरीथिंग इज फाइन. मैंने वो ऑफर लेटर साइन करके भी दे दिया, बट ट्रस्ट मी व्हाट आई फील लाइक, नो, ऑफर लेटर साइन करके भी मना कर दिया मैंने. 10 दिन बाद मना कर दिया, आई कैंट जॉइन. एंड आई केम टू माई होम टाउन वापी, और मैंने अपना ऑफिस स्टार्ट किया, कंप्लीटली रिमोट ऑफिस स्टार्ट किया मैंने. आई हायर एम्प्लॉयज और मैंने खुद का, सो बेसिकली इट वाज लाइक वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मैंने कैसे फंडिंग नहीं उठाया था. आई वाज लाइक जो भी व्हाटएवर आई अर्न, आई अर्न फ्रॉम माय बिजनेस. आई नेवर टेक एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, राइट. मैंने एक अपने, व्हेन यू गाइस सी माय जोस्टॉक वीडियोस, यू कैन सी आई स्टार्टेड विद 500 in my pocket, and it's counting some millions of मैंने लाखों की कंपनी बनाई. तो मेरा जो था देन सेल्फ स्टार्टअप था. ओके, बट अगेन whatever the earning I did from my startup, मैंने फिर ऑफिस लिया, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट हुआ, एंड आई स्टार्टेड ट्रेनिंग स्टूडेंट्स अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. और मेरी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी वेयर वी यूज्ड टू प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज. So see, starting it was difficult, right? As I said, I was an engineer, graduate, and I have a good offer. I rejected everything, and I taken the initiative to become the entrepreneur. I started my own venture. So it was difficult, even difficult when you term your family, your father. So see, if you're getting comfortable job of something 7.2 LPA in Bangalore with everything, offers and all, maybe your family feel like तूने कुछ अच्छा offer था तूने, because as an entrepreneur, see, you start earning. It's not about within 1 or 2 years, it take time to grow, right? So at that time might be the people not supported me, even they were not कि क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा है. and ये केस सबके साथ होता है कि sometimes you feel like कि
इवन आपके पेरेंट्स या फ्रेंड्स या कलीग्स बोलेंगे क्या कर रहे हो मुझे पता नहीं, राइट? बट द मेन थिंग इज लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग, राइट? आपका विजन क्या, आपका कंसेप्ट क्या, आप उसको कितना आगे लेके जा सकते हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे किसी को कोई मैटर नहीं करता. इट्स ओनली द मैटर दैट यू टेक द इनिशिएटिव, यू स्टार्ट विद दैट एंड यू अचीव व्हाट यू वांट. और मैंने वही किया. आई नो दैट इट कैन बी द गुड वन, एंड मैंने अपने आप को लाइक ठीक है, आई स्टिल से दैट आई कैन डू इट, एंड आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकता हूँ. मेरे पास सबसे बड़ा चीज का मेरा कॉन्फिडेंस था. ओके, एंड दैट कॉन्फिडेंस टेक मी टू डिफरेंट लेवल. सो 18, so everything within 1 year everything is fine, and luckily I went to Josh Talk. Josh Talk has invited me as a speaker, and when I went to Josh Talk I joined as a speaker. After Josh Talk, then people came to know about me, came to know about my work and everything. Definitely it came like, luckily I can say that ha cheeze badal gayi मेरी life में. Like I started getting good job projects, I started getting good students, और मुझे बहुत सारी universities और colleges से invitation I got to become the speaker, and I become the speaker in one of the top institute, और बहुत सारी colleges से आपकी invitation, even the Hansraj College, I got the invitation as a speaker and all. So when I become a speaker and all, I make awareness and all. So basically the things grow now. So now the people say whatever I'm doing is great. Okay, अब सबको मेरा काम दिख रहा है, मेरी चीजें दिख रही है, because after 2 or 3 years I make myself successful. Or see, you can't define the successful definition. Successful क्या होता है आपके पास? Even today I can't say that I am successful, because आज मेरे सपने और बड़े हो गए. कल के मेरे सपने क्या थे? मेरे सेटअप करना है, मुझे ऑफिस में लाइब्रेरी स्टाफ एंड ऑल, मेरे सपने थे. और आज मेरे ड्रीम्स कुछ और आ गए. नाउ in 2021 I write my book that is a digital entrepreneur. It's all about digital marketing. So I'm an author also, and as you said, award and everything, it's all went up with my journey. And in 2022 we recognized to one of the top 10 digital marketing company in India. It was published by one of the magazine. Now we are one of the, we aim to one of the top digital marketing agency in India. So it's all, the journey has started from 2017 and today it's 2023. So it's almost 6 to 7 years. But yes, I must say that whatever have कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंने सपने में जब स्टार्ट किया तो मैंने सोचा नहीं था. ओके, सो व्हेन आई स्टार्ट माय स्टार्टअप, मैंने सिर्फ एक इनिशिएटिव लिया था टू स्टार्ट अर्निंग. मेरे आइडियाज थे, कॉन्सेप्ट थे, मुझे काम करना था, मुझे अर्निंग करनी थी. दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दैट. बट नाउ it become one of the leading digital marketing agency in India, right? There's a lot of competitors, lot of people. You find बहुत से लोग as an entrepreneur, as a digital marketer, बहुत से लोग हैं. But that quality, that learning, that service that we provide takes us to define my vision, right? And मैंने आपको एक चीज और बोली थी. 2012 I went for IIT preparation. मेरा aim था to study in one of the top education institute. I did that. In 2021, I took admission in IIM Nagpur. I did 1 year PGDM from IIM Nagpur as a digital strategics and marketing analytics. So, मेरा जो 10 साल का it was started in 2012. I completed my dream in 2022. It takes me 10 years, but now I'm happy that I am IIM alumni. Okay. So maybe आपके सपने एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में नहीं सच होते. मुझे 10 साल लगे, जो मैंने 2000 एज अ 17 ईयर्स 17-18 साल का जब मैं था, मैंने सपने देखे थे और जाके मैं 10 साल बाद पूरा किया. सो इट्स नॉट अबाउट, कभी कभी वो चीजें आप रिग्रेट करते हो लाइफ में कि यार ये नहीं हुआ. और सी, लाइफ इज ऑल अबाउट चैलेंज, राइट? मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपकी लाइफ में सब अच्छा है. आप अपने चैलेंज से सीखते हो. अगर मुझे सिखाता है मेरा फेलियर, मेरा सक्सेस मुझे कभी नहीं सिखाता. क्यों? सक्सेस आप सेलिब्रेट करके भूल जाते हो, फेलियर आपके माइंड में आपको हमेशा याद रखता है. सो व्हेन यू बिकम फेल, यू फील हैप्पी. ओके, यू डोंट फील क्राई, यू डोंट रिग्रेट. आप रो, रिग्रेट करो, लेकिन एंड ऑफ द डे दैट फेलियर इज गोइंग टू टीच यू एंड इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ. सो फेल होना भी इंपॉर्टेंट है. और मैं आपको ये बोल रहा हूं, आप इनिशिएटिव लीजिए. ठीक है, जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे आप कुछ अचीव नहीं करेंगे. मैं आपको एक चीज बताता हूं, आई एम हियर एज ए स्पीकर, बट मैं कभी स्पीकर नहीं था. सो व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, मैं कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं किया. सो व्हेन आई डिड पब्लिक स्पीकिंग,
अरे आई डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस, मेरे पैर शेक करते थे, ठीक है, आई वाज दैट साइज स्टूडेंट्स. और जो स्टॉक इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म. When they invited me, मुझे नहीं पता था और मैंने बोला आप इनविटेशन भेजिए. So what I can see is lot of great entrepreneur like Ritesh Agrawal, Three Idiots की movie जिसको बनी थी, अनुराग कश्यप. These are the big people who went to Joe Stock. They share their story. मेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम पे कि मैं उस जो स्टॉक में जाके स्टोरी अपना शेयर कर सकता था. अरे मैंने कभी पब्लिक स्पीक नहीं किया. इट वाज अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर मी. मैं जो स्टॉक के टाइम पे ना बोल सकता था. आई कैन से यार मेरे से नहीं होगा, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में कैसे बोलूंगा. बट नहीं, आई टेक द इनिशिएटिव. और मुझे टाइम मिला थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट का, सीखने का. बट आई वेंट टू जो स्टॉक. I delivered my speech. End of the day, I was happy that I am able to deliver, and it was quite satisfied for me. और वहां से चीजें बदल गई. अगर मैं जो स्टॉक में जाता ही ना, मैं वहां पे अपनी स्टोरी शेयर करता, लोगों को कैसे पता चलता that who am I and why should I become. आज जो स्टॉक has given me the confidence to share my story with you, to become one of the entrepreneur, like to become one of the motivational speaker, and I'm in front of you. तो आप initiative लीजिए. See, so let me share one more story. Recently we got one of the great project. We got one of the best manufactured company in India. Okay, so you guys know this is a big company. Okay, and you guys know it. वो television ads सब कुछ करते हैं. It was a big project for us. Okay, and trust me, like मतलब आप मैं वही बता सकता है, इंडिया की जो टॉप कंपनी they want to work with us. So even I can say that we are not that 100% confidence, but yes, we want this project to come because हमने इनिशिएटिव लिया. आज ये प्रोजेक्ट आएगा, हमें कुछ लर्निंग होगी, सीखोगे, लेकिन हम उसको आगे लेके जाएंगे, हमारे लिए बेटर है. तो लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएंगी आपके पास. सो सी ऑल दिस लर्निंग एंड एवरीथिंग, व्हाई आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी. यहां से मैंने कुछ सीखा. एंड यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर लाइफ. आप लोग जो भी अपने लाइफ में करते हो, सीखो अपने आप को इवोल्यूट करो एवरी डे. ओके, मैं ये नहीं बोल रहा आप कुछ बड़ा करो, छोटा करो. सक्सेस क्या होता है? एट द एंड ऑफ द डे आप जो अचीव करते हो, आपको खुशी मिलती है. दैट डिफाइन द सक्सेस. सक्सेस ये नहीं है बहुत सारे पैसे. आपको बताऊं, माइट बी दिस इज अ टाइम ऑफ रील्स, दिस इज टाइम ऑफ स्टोरीज. सक्सेस मतलब पैसे. कभी सक्सेस मतलब पैसे नहीं होते. मनी कांट डिफाइन योर सक्सेस. मनी इज ओनली कैन फील लाइक बहुत है. सक्सेस इज व्हाट दैट यू डिफाइन. ओके, कहीं ना कहीं एज अ एंटरप्रेन्योर कमिंग दिस, आई हैव एवरीथिंग, बट सक्सेस इज समथिंग दैट मैंने अपने आप को गोल सेटअप किया हुआ है. ठीक है, पहले स्टेपिंग स्टोन था, आज मेरे गोल बहुत बड़े एंड आई वांट दिस गोल टू बी अचीव. और मुझे पता है इस गोल के अचीव करने के लिए मुझे पहले बी दैट कॉन्फिडेंस, बी दैट पर्सन कि जो उस पे जाके अचीव कर सके. इफ आई वांट टू बिकम वन ऑफ द टॉप एंटरप्रेन्योर, वन ऑफ द टॉप लीडर इन द इंडस्ट्रीज, मुझे अपने आप को पहले उस तरह से बनाना होगा. राइट, सो यू नीड टू कम विथ योर कंसेप्ट. अगर आज मैं जाके वन ऑफ द टॉप एंटरप्रेन्योर साथ बात करके कॉन्फिडेंस बात कर सकता हूँ, सीईओ, फाउंडर, डायरेक्टर से बात कर ऑन माई सेल्फ. मैं आपको ये चीज बोलूंगा, आपने कोयले की खजान देखा होगा, वहां से हीरा निकलता है. राइट, सो एक दिन में नहीं निकलता, उसको कितने प्रोसेस होते हैं, और जब हीरा निकलता है उसकी वैल्यू डिफाइन होती है. राइट, और उसकी जो वैल्यू होती है सबसे प्रीसियस होती है. यू बिकम दैट डायमंड. Become that diamond. आप उस डायमंड अपने आप बनो. Right? So that diamond can't be defined in one day. Diamond can be the process of your life. आप उसके लिए अपने प्रोसेस को फॉलो करो. And I must say, आप अपने आप पे काम करो. You work on yourself. Okay? You work on your confidence. You work on your communication. You work on your skills. Struggles are there. People will see. लोग आपको बोलेंगे, तकलीफ आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी. बी हैप्पी. आज जो स्ट्रगल्स और हेडल्स आ रहे हैं ना, आपको मजबूत बना रहा है. राइट, यू मेक योरसेल्फ स्ट्रांग. दिस हेडल्स, दिस ऑल थिंग स्ट्रगल्स आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए. सी, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर ये स्ट्रगल्स, ये हार्डवर्क की चीजें लाइफ में ना होती ना, आपकी कंफर्टेबल लाइफ में आप कुछ नहीं अचीव करोगे. आपने बहुत सारे स्टोरीज एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स की पढ़े होंगे. कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कंफर्टेबल था, सब कुछ मिल गया. इवन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके फादर के बिजनेस में जाते हैं और बिजनेस नहीं चला पाते. क्यों? क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए, आप बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए, कुछ भी आप करते हो, आपको पहले अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा. ओके, मैं एक चीज पूछता हूं,
So see, you guys are basically in the college, okay, and might be कोई थर्ड ईयर होगा, कोई सेकंड ईयर, some of them were college passed out because ये बाहर से भी कुछ लोग आए. आज आपकी अर्निंग कितनी है? What is your earning? Okay, so अगर मैं बात करता हूँ as a fresher, if you go to the for the job as a boy or girl, you go because today's time that everyone is equal, right? अब वो कोई गैप नहीं रह गया. आज आप जॉब के लिए जाते हो तो आप कितने की सैलरी एक्सपेक्ट करते हो? See, job is basically you are giving 8 to 9 hours to someone, right? And what is your value? आप उस जॉब के लिए कितनी जॉब मतलब कितनी पे स्केल एक्सपेक्ट करते हो? एज अ फ्रेशर अगर मैं बात करूं, आपकी डिग्री नॉलेज सब कुछ अच्छा है, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप 30-40,000 की स्टार्टिंग जॉब्स ले लोगे एंड आप उसमें खुश रहोगे. बहुत से लोगों के लिए दैट्स फील लाइक हैप्पीनेस, राइट? सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपने अपने आप को डिफाइन किया आई कैन गिव 8 to 10 आवर्स टू एनीवन, ओके, और मेरे पे स्केल मुझे 30 to 40,000 चाहिए. और कुछ लोग होते हैं जो मे बी इतना नहीं है तो दे एक्सपेक्ट 20 to 25,000, ओके, और कहीं ना कहीं आपको 20 to 35,000 जॉब मिल भी जाती है, राइट? चलो ठीक है, आपको इतनी एक्सपेक्टेशन में कॉलेज के बाद मुझे प्लेसमेंट हो जाए और 40-50,000 की मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी और दैट्स स्टार्टिंग. बट मैं आपसे चीज पूछता हूँ, यू नो कितने एक्सपेंसेस है आज? लेट्स से आपने 50,000 का एक जॉब ले लिया, राइट? 50,000 इट सीम्स टू बी लाइक गुड फॉर द मिडिल क्लास. आप एक बात बताइए, आज का आप एक्सपेंसेस जानते हो? आफ्टर जॉब 3 to 4 years यू माइट बी गेट मैरिड. आप एक मैरिड हो जाते हो एंड उस टाइम पे आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे. You need to support your family, you need to support your partner, and then somewhere you have your own liabilities. आप बाइक ले लोगे, कार ले लोगे, ठीक है? तो आप इसी में 60-70 आपकी 80 सैलरी हो जाएगी. तभी भी आप अपनी सिर्फ स्ट्रगल लाइफ को जियोगे, ठीक है? उसके बाद आपको घर खरीदना पड़ेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंफर्टेबल लाइफ, जो आप अपने आप कोई भी इनिशिएटिव लेता है. तो आप बताइए, क्या घर लेना, गाड़ी लेना, you might have a like children, you might have a like partner, तो आप एक चीज बताइए, 80-90-1 lakhs is enough for that? No. आप अगर 80-90,000 अर्न कर रहे हो विद एवरीथिंग एट दिस टाइम, ट्रस्ट मी, आप सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो. तो कहां से अपने सपने, अपनी चीजों में कहां से बनाए? आपको आज काम करना पड़ेगा. सी, इफ यू हैव अ स्किल, if you have a confidence, आप इंटरव्यू में जाओगे. See, I don't prefer that I am good for 50,000, I need 80,000 because I have this skills. I must say that I want this. और अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आप सामने बोलोगे and he will pay because you know your value, right? See, in the when you go for the job, when you as an entrepreneur, as a like a service industries, आप अपने आप की वैल्यूज डिफाइन करते हो. वैल्यूज इन टर्म ऑफ टाइम, टाइम इन टर्म ऑफ मनी. आपका टाइम कहीं ना कहीं पैसे को डिफाइन करता है, राइट? सो सी, टुडे माइट बी व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, आई वाज चार्जिंग अ वेरी लिमिटेड अमाउंट फॉर माय सर्विसेज, बट नाउ एज ग्रोन अप, एज वी आर नॉलेजेबल सर्विस, अब हमने सब कुछ बेटर कर दिया. नाउ आज एक अच्छी कंपनी हमारी सर्विस को अफोर्ड कर सकती है बिकॉज वी केम टू दैट रेंज. हमने अपने आप, अपनी वैल्यूज, अपनी सर्विसेज को इतना उठाया हुआ है कि आज हम वी से दैट वी चार्ज दिस मच एंड पीपल विल गोइंग टू पे बिकॉज वी हैव वर्क ऑन अवरसेल्फ. हमने अपने आप को, अपनी कंपनीज को, हर चीज पे काम किया है. हमने अपनी वैल्यू डिफाइन की, आज इस वैल्यूज के लिए हम चार्ज करते हैं. सो दिस ऑल इज लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर, व्हाट यू आर डूइंग, एंड आप कैसे अपने आप को अपग्रेड करोगे और अपने आप को कैसे आगे लेके जाओगे. सो इट्स ऑल अबाउट दिस. Normally I almost cover the more top time. There's a lot of things that I can discuss with you, but I understand that it's very, in the starting of your life, it's very important कि आप अपनी लाइफ को, सी, मैं ये नहीं बोल रहा चिल करो, एंजॉय करो, लाइफ है, सब कुछ करो, बट अपने आप को, अपने विजन को, अपने ड्रीम को, अपने सपनों को 1 या 2 घंटे दो डेली, और 1 या 2 घंटे आप स्टेपिंग स्टोन बनाओ. सक्सेस के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं बहुत बड़ा बना लिया हमने, अचीव नहीं होगा. छोटे छोटे गोल्स बनाओ, स्मॉल स्टेप्स, आप उस स्टेप्स को लेते जाओ. एक दिन आपका सब स्टेप अचीव हो जाएगा, फिर आप आगे अपने आप ड्रीम बनाओगे. आप एक ड्रीमर बन जाओगे, और जब आप ड्रीमर बनोगे तो कहीं ना कहीं आपके जो ड्रीम और सपने होंगे आपको और बेटर मिलेगा. मैं बता रहा हूं, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी मुझे जो मिल रहा है, बट टुडे आई लाइक मैंने अपने आप को फिर अपग्रेड किया टू बिकम मोर. तो कहीं ना कहीं आप अपना लाइक बोलते हैं ना, काम करते जाओ, फल आपको मिलता जाएगा. So I think so. Anyone of you have a question, please you can ask. Thank you, sir. It was indeed very motivating.
Now the Thanks. forum for question and answer is open for the audience, and apart from questions and answer, you can interact with sir as well. So if you have any question, you can post in the chat box, or you could unmute one by one and ask. Yeah. Hi, Rena. Yes. Yes, sir. First of all, I want to thank you for such an information session with us. And sir, as you mentioned that you are an engineer and then you switch your field to digital marketing career, and it's totally opposite. Like you were the engineer and it's marketing field. Yeah. You have never studied for the commerce. Mm-hmm. Yeah. Please. Study for the commerce field, yeah. And you are the like one of the IIMs. So and I am Yeah. doing formula like my specialization is also in the marketing field, and I am too right now doing a digital Great. marketing course and learning the skill right now. So what's your suggestion for me Yeah. कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में ही एज अ करियर एक्सप्लोर करना चाहिए या फिर एज अ लाइक आईएम्स में जाना होता है, लाइक हर किसी का ऐसे एक पाथवे होता है कि कॉलेज पास आउट कर लिया देन मास्टर डिग्री करनी है, टॉप आईएम्स में जाने पार्ट होना ही है. तो आपके लाइक यू आर द एंटरप्रेन्योर एंड तो आपकी तरफ से क्या ज्यादा बेटर है कि मास्टर डिग्री करना ही इम्पोर्टेंट है या फिर सिर्फ अपनी स्किल के साथ आगे अपना स्टार्टअप भी कर सकते हैं? Got it. दोनों की See, बहुत totally, Nana, I understand your question. Basically, आपने जैसे बोला कि मैं एज ए इंजीनियर था मैं, और वहां से मैंने डिजिटल मार्केटिंग में स्विच कर दिया और मैंने कॉलेज में स्विच किया, राइट? तो सी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सी हम जब पढ़ते हैं ना, पढ़ना और रियल लाइफ एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है. आप जो बुक में पढ़ते हो, आप जो एक्सपीरियंस करते हो अपने स्टडी टाइम में, वो आपको अच्छा लगता है एज अ रीडिंग, एज अ अंडरस्टैंडिंग. बट आप जो रियल टाइम में एक्सपीरियंस करते हो, वो आपको पैशन को डिफाइन करता है, राइट? कमिंग टू मार्केटिंग इज माई पैशन, इज माई इंटरेस्ट, ओके. और मैंने उसको जाना. इट्स नॉट अबाउट कि किसी ने बोला. व्हेन आई स्टार्टेड learning digital marketing, when I started learning marketing, I understand that I'm good into it, okay, और I have passion. और मैं आपको बताऊं, ये जो मुझे जॉब है और whatever I'm doing, I can dedicate my still. आज मैं आपको बताऊं, मैं 17 से 18 काम कर सकता हूं. Don't feel like tired. मैं ये नहीं सोचता हूं कि मैं काम कर रहा हूं. I enjoy. Basically I enjoy doing this work. और आप जब किसी चीज को एंजॉय करते हो ना, ट्रस्ट मी, यू विल बिकम मोर सक्सेसफुल इन योर लाइफ व्हेन यू एंजॉय डूइंग द वर्क. आप काम को काम मत लो, काम को एंजॉय करो. और जब आप काम को एंजॉय करोगे ना, सच में बता रहा हूं, आप इतना सक्सेसफुल हो जाओगे कि कहीं ना कहीं आपके लिमिटेशन कम पड़ जाएंगे. आपने सचिन तेंदुलकर को जानते होंगे, बड़े बड़े क्रिकेटर्स को जानते हैं, एक्टर्स को जानते हैं, सबको जानते हैं. बहुत सारे इंजीनियर्स आपने देखे होंगे कि अपनी कैरियर्स को चेंज कर देते हैं. ठीक है, सब बोलते हैं कि 60-70% तो कैरियर चेंज कर देते हैं इंजीनियर्स. सो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इंजीनियर्स कैरियर क्यों स्विच करें. बहुत से लोग स्विच करते हैं. आपका पैशन इंपॉर्टेंट है. सचिन तेंदुलकर, मैं आपको बताऊं, ही स्टार्टेड हिज कैरियर लाइक 3 या 4 साल से ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट. ही एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट. उसने ही बिकम ऑफ द ग्रेट क्रिकेटर. बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, दे एंजॉय डूइंग एक्टिंग. और आप, सच में बता रहा हूं, जिस दिन आपका प्रोफेशन, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को एंजॉय करोगे ना, ट्रस्ट में आपके पास पैसा रहेगा, आप खुश रहोगे, एंड दैट डिफाइन योर सक्सेस. तो आप कहीं ना कहीं उस पैशन को देखो जो आपको खुशी देता है. आप उस काम को करिए जहां से आपको हैप्पीनेस मिल रहा है. तो डिजिटल मार्केटिंग लेने का मेरा वही पर्पस था, बिकॉज आई एंजॉइंग डूइंग दिस. I enjoying learning new things. I enjoying work on website designing. I enjoying doing SEO. I started doing Google AdWords. I started the performance marketing. I started all these things. ठीक है. और देखिए ना, मैं आपको अभी आप कोर्स सीख रहा हो. डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट लाइक आप एक दिन में चीजों को कंप्लीट कर सकते हो. ये इंडस्ट्रीज ऐसी है कि हर दिन चेंज होती है. कल आपका अपडेट आ जाएगा गूगल एडवर्ड्स में, आपके परसों फेसबुक का अपडेट्स आ जाएगा, आपकी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं आ रहा. तो ये कंटिन्यूस इवोल्यूशन होता है. जब आप सीख रहे हो, आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो, आप वहां से नॉलेज लीजिए. ठीक है. आपने एक चीज इंपॉर्टेंट देखी होगी कि मैंने जो भी अपनी लाइफ में किया, मैंने सीखा. ठीक है. और मैं जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ काम कर रहा हूं, मैं सीखता हूं उसका रिजल्ट क्या आ रहा है. ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है, और परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैं अपनी स्ट्रेटजी और प्लान को चेंज करता हूं. और जब मैं अपने स्ट्रेटजी और प्लान को चेंज कर रहा हूं, तब डेफिनेटली मुझे क्या मिल रहा है, रिजल्ट्स मिल रहा है. सो सी, आप जब
UI टू डिजिटल मार्केटिंग सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आप उसमें इंटरेस्टेड हो। आप जो टूल्स है, जो आपकी डिजिटल स्ट्रेटजिक्स है, प्लानिंग है, और जो आप SEO कर रहे हो, वेबसाइट जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, सोशल मीडिया एंड ऑल, आपको रियल टाइम में यू फील लाइक गुड। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आपने बोला लर्निंग का, डेफिनेटली आप सीखो, इंप्लीमेंट करो। आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आप देखो रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, आप एक्सपेरिमेंट करो, A/B टेस्टिंग करो, जिसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं लर्निंग मिल जाएगी। उसके बाद आपने जैसे बोला कि सर मास्टर्स इंपॉर्टेंट है, यस। अगर आप एक अच्छा करियर डिफाइन कर रहे हो, सी बैचलर्स जो डिग्री होती है ना, आपको एक मैनेजर लेवल तक लेके जाएगी। आप एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करते हो, सीनियर एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करोगे, असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करोगे, आप मैनेजर तक चले जाओगे 8 से 10 साल, आपको टाइम लगेगा। बट एज यू गो, जैसे आप IIM से करते हो, टॉप ISB से करते हो, टॉप इंस्टीट्यूट से करते हो, आप एज अ लीडर कंसीडर किए जाते हो। कभी भी IIM IIT ऑन में आपको वर्कर्स नहीं मिलते, आपको लीडर्स मिलते हैं। जब आप IIT टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे ना, आपको लीडर्स बनाएंगे। उनकी स्टडी मैथोलॉजी ऐसी होती है कि आपको जो केस स्टडी दी जाएगी, आपको जो बेसिकली डिफाइन किया जाएगा, आपको एक लीडर बनाया जाए। और लीडर्स बड़े बड़े कॉर्पोरेट जानते हैं कि ये ऑलरेडी लीडर है, इसलिए लीड कर सकता है। देन आप जब IIT IIM यहाँ से पढ़ से निकलते हो, तो आपको हेड या बेसिकली आपको सीनियर मैनेजर या डायरेक्टर, VP, CEO ये सब जॉब रोल ऑफर होते हैं। तो ये डिफरेंस हो जाता है कमिंग फ्रॉम नॉर्मल इंस्टीट्यूट टू वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट। और देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, आप सीखो, नॉलेज लो, बट डिग्री इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि डिग्री से आपको कहीं ना कहीं वैल्यू ऑफ वेटेज मिलता है। गॉट इट, नैना? Yes, sir. Totally. Thank you so much. And sir, मेरे को एक और डाउट था डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग में। मेरा सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है रिगार्डिंग द मार्केटिंग फील्ड। एंड सर, मेरे को ये पूछना था, लाइक एज वी आर सेइंग, इट्स अ बूम ट्रेंड नाउ, एवरीवन इज डूइंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड एवरीवन इज इन द मार्केटिंग फील्ड and want to expand. So sir, like what other thing I should do and to be stand by them कि मैं उनसे अलग हूँ, मैंने भी वही कोर्स कर रखा है, but still I'm like I have more skills than others. Got it. So see, Naina, if I talk about the present digital marketing scene, so सबसे ज्यादा इस टाइम पे ग्रोथ है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। You know about performance marketing? Yes sir. Yeah. So सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है परफॉर्मेंस मार्केटिंग की। Why? परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज, आप जितना एड्स में, आपको कंपनी क्या बोलेगी, हम आपको इतना बजट देते हैं, यू आर गोइंग टू स्पेंड 30-40 lakhs ऑन द एड्स, और आप मुझे 1 or 2 CR का रेवेन्यू दो। और ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई कंपनियां डिजिटल को क्या देखती है, एज अ सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू। पहले सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफलाइन थी, अब सेल्स एंड मार्केटिंग जा चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं डिजिटली सेल्स लाने के लिए, और डिजिटली मार्केटिंग करके, सेल्स करके आप रेवेन्यू बढ़ाओ। तो आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग से उसका रेवेन्यू बढ़ा सकते हो। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग आपका ट्रेंडिंग है। आप जब परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर लेते हो, तो आपकी एक अच्छी खासी पैकेज हो जाती है, और आपकी एक मतलब मैं आपको बताऊं कि आप अच्छा जंप कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग। बिकॉज अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो इस टाइम पे, आप डायरेक्टर VP तक जाते हो, तो आपको मैक्स टू मैक्स 20 से 25 लाख का पैकेज ऑफर हो सकता है पर ईयर, राइट। बट आप एज अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग है और डिजिटल मार्केटिंग का भी नॉलेज है, तो आप कहीं ना कहीं 35, 40, 50 लाख का भी ऑफर मिल सकता है। बट अब एज एक्सपीरियंस इट्स वेरी, बट अगर आप परफॉर्मेंस को पकड़ के रखते हो, कमिंग टाइम में परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा वेटेज है। और आगे के टाइम में ऑटोमेशन मार्केटिंग आ रहा है, ऑटोमेशन डिजिटल मार्केटिंग टूल्स हो जाएगा, तो हम बहुत सारे टूल्स पे डिपेंड रहेंगे। बट उस टूल्स को जानने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए, उसका बेसिकली परफॉर्मेंस देखने के लिए, दे नीड अ डिजिटल मार्केटर। सो आप डिजिटल मार्केटिंग के साथ परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करें। Okay sir, thank you so much sir. It would be like really helpful for me. Thanks. And if I got any other doubt in my future, I would really like to connect with you on LinkedIn. Definitely. So you guys can search on Google Vikas Mishra Entrepreneur, and I'm available on social media, Facebook, Instagram, LinkedIn, and all. So I'm not able to attend the call due to my busy schedules, but whenever you guys will reply on me on the message, I'm available. So maybe I get a time, I will reply to your questions. And you can see the purpose of this is not about the digital marketing. You never be the same. See, I'm not telling कि आप डिजिटल मार्केटर बनो, आप इंटरप्रेन्योर, मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है, कि आप सब वही करो। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने पैशन को फॉलो करो। आप जानो आप किसमें अच्छे हो, आपकी स्किल सेट्स क्या है, आपके पोटेंशियल्स क्या है, आप किसमें अच्छे हो, एंड उस फील्ड में आप काम करना शुरू करो। जॉब भी बेटर है, बिजनेस भी बेटर है, एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड भी बेटर है, हर चीज बेटर है, लेकिन आप किस तरह से उसको आगे लेके जा रहे हो। एक बात बताइए,
आपने कभी चाय देखा हुआ है? कितने सारे स्टार्टअप्स दे कम विद एमबीए चाय वाला आपने देखा, बहुत सारे चाय वाले आ गए, सुट्टा बार समथिंग दैट दे कम अप। तो इन लोग ने क्या किया, चाय बनाना तो आप लोग भी जानते हैं ना, यू गाइस नो हाउ टू मेक अ चाय, राइट? वो भी वही कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, बट नाउ दे बिकम ऑफ द ग्रेट एंटरप्रेन्योर। Yes, sir. कैसे हुआ? It's totally about the marketing and strategy, that how they use it. मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आप कॉन्सेप्ट को कैसे लेके जा रहे हैं। सी यू गाइस आर मोर टैलेंटेड। अगर मैं बात करता हूँ एज अ बॉय, आई अंडरस्टैंड व्हेन आई डोंट नो द कुकिंग एंड ऑल थिंग्स। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स है, जोमेटो स्विगी, क्या कर रहे हैं, दे ऑर्डर फूड एंड ऑल, वो खाना भी नहीं बना रहे, कुछ नहीं, दे आर द इंटरमीडिएटर, राइट? लेट मी थिंक अबाउट एज अ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। आप सोचो, आपको सब कुछ आता है, यू नो हाउ टू कुक फूड एंड ऑल, आपकी वैल्यू नहीं है। अब जो खाना लाने वाला होता है जोमेटो स्विगी, आप उसकी वैल्यू ज्यादा मार्केट में होती है। So what is happening? It's all happening. लोगों ने कॉन्सेप्ट आइडियाज और हिसाब से बना दिया, कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया है कि लोग उसको वैल्यू दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास ज्यादा वैल्यू है, बट इवेंचुअली आप जानते हैं जिस दिन आपकी वैल्यू आपको पता चलेगी ना, उस दिन आप अपने स्किल सेट को लेके जाओगे, दुनिया को पता चलेगी आपकी स्किल्स क्या, राइट? Yes, sir. Yeah. Any other question? और किसी कोई क्वेश्चन? यू कैन कम अप विद एनी क्वेश्चंस कि आपको कुछ करने को हो रहा है, आपकी फैमिली में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या आपको एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एंड ऑल देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। एज अ लाइक बॉय, आई हैव लाइक sisters and also I understand your things, okay? So you can come up with any questions. I'm comfortable with that. And maybe see, it's not about as a motivator, it's very important we talk each and every topic. You can come up with the personal life also. You can come up with, see, I have a lot of experience in my life, okay? Coming from all this journey, 27 years, I have a lot of experience in my personal experience, okay? So आपको कोई issues आ रहे, sometimes you emotionally you connected with someone and that person has gone from your life, and might be you're not able to come up and you're not focused on your career or life and anything. So even these all things are there, so you can come up with this. See, it's very important you share your thoughts with the person, and we are in that. See, as a motivator, I understand it's very important for you to come up and talk with each and every topic, and I'm comfortable to talk on all these things because it's very important for you and for everyone. Do we have any more questions? No doubt, no confusion, no question, right? So I think like that. But I guess we do not have any more questions. Thank you so much for answering the doubts. Yeah. Yeah. So I think so. That's all. We always cover the points, and I think so. Whatever the things I need to like, whatever experience I have, I share with you. You guys can might be you take one learning from my experience, or might be you can take learning from your experience because it's your life. You are almost at certain age where you understand what is good for you, what is bad for you, and what experience you have in your life that can take you ahead. So you think about all these things and become the best person of your life and become the actor and actress of your life. मैं आपको यही बोलूंगा, अपने लाइफ का हीरो बनो, लाइक एक्टर एंड एक्ट्रेस बनो. डोंट फॉलो एनी अदर पीपल, राइट? अब डोंट फॉलो दैट दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर एंड एवरीवन, ओके? यू बिकम द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ. और एक दिन ना आप अपनी लाइफ को डिफाइन करो. यू कम विद अ स्टेज, talk to yourself and say that I am the real hero or actor, actress of my life, and be that one. Be that confidence enough to tell you that yes, I am that person. आप अपनी वैल्यूज को, अपने आप को मोटिवेट करो. जी, हम कभी कभी अपने आप को बहुत डाउन कर देते हैं. डाउन इन ए सेंस कि हम अपनी वैल्यू नहीं जानते. तो आपको जो कोई बोलता है तो आप सोच लेते हो, आप डिप्रेस हो जाते हो. बट इट्स नॉट लाइक दैट. यू टॉक टू योर सेल्फ, यू गिव टाइम टू योर सेल्फ एंड यू थिंक दैट व्हाट यू आर. So it's a major things that you can take from this session. Okay. Okay, so we have Anjali sharing her story in the chat box. Yeah. Okay. Let me.
See, हाँ, I totally. So your question is valid, right? ये हर किसी के लाइफ में होता है कि पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप सही और गलत का आइडिया नहीं. बट सी, मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ, आप उनको दिखाओ कि सही गलत क्या होता है. कभी कभी मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूँ. मेरी जर्नी में जब मैंने जब अपना पहला ऑफिस लिया था, माय फादर हैज नेवर केम टू माय ऑफिस. उनको भी बहुत था कि मतलब मैं क्या, मेरे फादर से थोड़ी डिस्प्यूट हुई, मतलब डिस्प्यूट इन सेंस कि उनको था कि इंजीनियरिंग हो गई, सब कुछ बेटर है, क्या कर रहा है, उनको सच में समझ नहीं थी. तो कहीं ना मैं आपको बताता हूँ क्या होता है. ये चीजें आप कैम कर सकते हैं. कहीं ना कहीं जो आपके पेरेंट्स होते हैं और आपका जो नॉलेज है बहुत डिफरेंस होता है. सी, आपके पेरेंट्स ने एक लाइफ देखी है, वो जॉब कर रहे हैं तो उन्होंने कंफर्टेबल लाइफ जॉब में देखी है, और वही चाहते हैं कि मेरा जो भी मेरे बच्चे हैं वो एक कंफर्टेबल लाइफ में जाए. ठीक है. और कहीं ना कहीं जब आउट ऑफ बॉक्स आप एक ट्रैक देखते हो, समझो आपकी फैमिली किसी ने बिजनेस किया और आप सोच रहे हो कि मैं बिजनेस करने के लिए या मैं इस फील्ड में जाने के लिए, उनको आइडिया नहीं है. तो क्या होता है ना, मैं सबसे आप डिस्कस करो, आप अपने पेरेंट्स के साथ अपनी बातें रखो, आप उनको बताओ कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, और यहां से ये रिजल्ट आएगा इन सेंस ऑफ लर्निंग, इन सेंस ऑफ नॉलेज, इन टर्म ऑफ अर्निंग. आप सब कुछ बताओ. और जब आप उनसे शेयर करोगे ना, उनको बताओगे, उनको समझ में आएगा कि माय सन और माय डॉटर इज मोर मैच्योर एंड ही इज ऑन द राइट ट्रैक. कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिकेशन गैप आपके पेरेंट्स और आपके बीच में होता है ना, उसकी वजह से तकलीफ आती है. तो आप इस कम्युनिकेशन को जो हो रहा है आपके पेरेंट्स और आपके बीच में, आप इसको कम कर दीजिए. ठीक है. आप अपने पेरेंट्स को बताते जाइए और उनको रिजल्ट्स भी बताओ. सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उनको भी रिजल्ट्स आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आपने 2 या 3 महीने में क्या अचीव किया. छोटे मोटे अचीवमेंट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए. उनको दिखेगा कि आज यहाँ पे और यहाँ पे अचीव कर लेगा. राइट. When I started my career, my father was not happy, okay, and he never said कि क्या कर रहा है. So 1 साल बाद जब मैं अपने फादर के साथ बैंगलोर गया, इंडियन ISB में, आपने बताया इंडियन आइकन बिजनेस अवार्ड में अवार्ड लेने गया, एंड देयर ही सॉ मी. उन्होंने सबसे बात किया, देखा और समझ में आया कि व्हाट आई एम डूइंग इज मोर यूजफुल. और इसका बहुत कंसेप्ट है. इसका मतलब ये जो डिजिटल मार्केटिंग, ये जो मैं कर रहा हूँ एज ए एंटरप्रेन्योर, बहुत आगे जाने वाला है. ठीक है. सो जब उनको दिखा, समझ में, आज वो सपोर्ट करते, एंड आज भी उनसे कम्युनिकेट करता हूँ, बताता हूँ, सपोर्ट करते हैं, एंड आई एम सपोर्टिंग माय फैमिली आल्सो. तो कहीं ना कहीं उनको बताओ कि आप क्या कर रहे हो, क्या सही है, क्या गलत है, और आपको सपोर्ट भी करेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उनको जब समझ में आएगा ना कि माय डॉटर, माय सन इज राइट, दे विल नेवर टेल यू कि आप मत करो. सो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर होते हैं. सी, एज अ फादर, एज अ मदर, दे आर इनसिक्योर अबाउट यू, और वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इवन व्हेन यू बिकम द फादर, व्हेन यू बिकम मे बी यू बिकम द मदर, यू बिकम द फादर, आपके बच्चों के, आपको भी इनसिक्योरिटी होगी कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, यू आर क्यूरियस टू नो अबाउट इट. तो जब आप उनको बताते जाओगे, उनको अपने साथ रखोगे, तो कहीं ना कहीं गैप कम हो जाएगा, एंड दे विल एक्सेप्ट वॉट एवर यू आर डूइंग, और चीजें चल जाएंगी. इट्स नॉट डिफिकल्ट. सी, हर किसी फैमिली में होता है. तो ये चीजें आप सॉल्व कर सकते हैं इफ यू वांट. यस. Thank you, sir, for answering. But as we are running out of time, so would like to say Yes. that we'll be sharing LinkedIn of sir into the chat box. Definitely. And you can connect to him via that. Now, sir, on behalf of the Institution's Innovation Council, I extend sincere gratitude to you for taking out time from your busy schedule and joining us. This session has truly helped in increasing our knowledge about the topic, sir. And you truly inspire. We extend our deepest gratitude to our principal, Dr. Payal, for being a pillar of support and strength. This is not beliefs. We will extend our heartfelt gratitude to the audience for showing your keen interest in learning. We hope it provides you with great learning outcome. It was really a very interactive session. Thank you so much. Yeah. It was same. So I really like the way I interact with you all guys, and it really helped me so that I can share my some values and anything. And then I must say, be the hero of your own life. Okay. Thank you. Thanks everyone. Bye. Take care.